ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जीओ, धन गुरु नानक देव जी महाराज का पहले पातशाह जी का एक वाक, जिहदी कथा शब्द की बैकग्राउंड कवि संतोख सिंह जी ने गुरप्रताप सूरज दे दर्ज की ते जन्म साखी दे भी जिक्र है। इस वक्त ये विचार मैं आप जी के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी उदासी समाप्त करके धन गुरु नानक देव जी महाराज ने जब तीसरी उदासी की तैयारी कर ली, उदों ममता की मारी हुई माता तृप्ता जी धन गुरु नानक देव जी महाराज को कुछ समझाण लगियां ने। पुत्र हुण तुसी गृहस्थी हो, सिर्फ गृहस्थी नहीं, थोड़े दो बच्चे हैं। 12-12 साल की उदासी घर का रुख नहीं करते, ये शोभा नहीं देता। तुसी गृहस्थ धर्म की पूर्ति नहीं करते। परिवार विच रहना भी तो थोड़ा धर्म है, ये भी तो एक धर्म है। मनुख का जीवन एक है, पर ये कोल धर्म कई ने, सारे धर्मां की पालना करनी पैंदी है। जैसे पढ़ना एक धर्म है, तो माँ बाप का बच्चों को पढ़ाना ये उन्हां दा धर्म। उस्ताद की आग्या विच रहना, जिहदे कोल शिक्षा लैनी है, ये विद्यार्थी का धर्म है। ते अध्यापक टीचर उस्ताद सही शिक्षा देनी, ईमानदारी नाल देनी, ये उहदा धर्म है। शरीर की पालना करना भी एक धर्म है, ते पालना वास्ते उपजीविका किरत करनी धर्म है। इस तरह धर्म इकट्ठे करिए। पत्नी का धर्म, पति का धर्म, बच्चों का धर्म, माँ बाप का धर्म, हर एक का अपना अपना धर्म। बच्चों का माँ बाप की सेवा ते आग्या धर्म है। माँ बाप का बच्चों को पढ़ाना, काबिल बनाना धर्म है। हम ख्याल होके चलना पति ते पत्नी का धर्म है। लेकिन इन्हां सारे धर्मां विचों सिरमौर धर्म है प्रभु का नाम जपना। सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म केड़ा श्रेष्ठ धर्म है? हर को नाम जप निर्मल करम। हरि का नाम जप, बस यही निर्मल कर्म है। इस तो वड्डा और कोई निर्मल कर्म नहीं है, यही निर्मल। कई कहते निर्मल कर्म करदे होया नाम जपो। हिरदा निर्मल होएगा ही जप के, पहलों कितों निर्मल होके नाम जपेगा। उम्मीद है जो गुरबाणी थोड़े बहुत भी अर्थ बहुत की गहराई च जाते होणगे। जे इंज अर्थ करिए कोई निर्मल कर्म करो तो प्रभु का नाम जपो।
ਜਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਿਨਤਾ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਇਹੀ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਇਸ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਤਨੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੋ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੋ। ਉਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ, ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ, ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ? ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਦੱਸ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਂ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਠੀਕ ਹੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਸੁਦਾਈ ਹੈ, ਸੁਦਾਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਰੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪਸਾਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਮਾਂ ਹੈ। ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ 'ਚ ਮਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਅਰਥ ਬੋਧ ਨਾਲ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਾਤਾ ਮਤ
पिता संतोख सत भाई कर एहे विसेख। चंगी मत श्रेष्ठ मत ये मेरी माँ मेरे नाल जाती है, हर जगह मेरी रक्षा करती है, मेरी देख रेख करती है। चंगी मत श्रेष्ठ मत। समाज उस बच्चे नूं यतीम कहता है छोटे होंदियां जिहदी मां मर जाए, यतीम है, ये तो यतीम है। पर महाराज इत्थे ये कहना चाहते ने उन्हों यतीम ना आखो। जिंदगी दे वसीले लभ लेगा, पर जिहदी मत मर जाए वो तो जिंदगी भर ठोकरां ही खांदा है, ठोकरां ही खांदा। जिहदी मत मर गई है वो शरबत नहीं पिएगा, अमृत नहीं छकेगा, शराब पिएगा। मत जो मर गई है, मत मर गई है। गुरु का सिख होंदे होया केसां दे च कंगा नहीं फेरेगा, कैंची फेरेगा, उस तरह फेरेगा। मत जो मर गई है, मत मर गई है, हर तरह का छल कपट ते अनर्थ करेगा और फिर ठोकरां खावेगा, क्योंकि हर कर्म का अपना फल है। ये जो श्रेष्ठ मत है, चंगी मत है, ये मेरी मां है, मेरे नाल हर वक्त, हर वक्त। परिवार दे फिर केवल मां नहीं आती, तृप्ता जी कहंदियां ने। ये सारा संवाद कवि संतोख सिंह जी ने लिखा है, मैं उन्हों का ही थानू सुना रहा। प्यो भी होंदा है, पिता भी होंदा है। पिता कौन है थोड़ा, जिहड़ा थोड़े नाल जांदा है? तो महाराज कहते हैं पिता संतोख। लोभी मनुख हर जगह ते दुखी होंदा है, जो कुछ भी मिल जाए दुखी होंदा है। संतुष्ट मनुख हर जगह ते सुखी होंदा है, जो कुछ भी हो गया ठीक है, ठीक। कहते ने लोभी नूं सुखी नहीं किया जा सकता, संतोखी नूं दुखी नहीं किया जा सकता। वो तो हर हालत दे च राजी, जो हो गया ठीक है, ठीक है। इनू एक शायर इंज बयान करता है, जो हंस रहा है सो हंस रहेगा, जो रो रहा है सो रो रहेगा। सकूने कल्ब से खुदा खुदा कर, जो कुछ के होना है सो हो रहेगा। जो कुछ हो गया ठीक है, ऐ खुदा तेरी तरफों जो कुछ हो गया ठीक है, सानू कबूल है। सब कुछ तैथों होंदा है, रिज़्क भी तैथों होंदा है। जो कुछ मिल गया झोली ठीक है। संतोखी नूं दुखी करना बड़ा औखा है, ते लोभी नूं सुखी करना बड़ा औखा है। लोभी कदी सुख चैन नाल नहीं बैठ सकता, उन्होंने सुख की नींद कतई आ ही नहीं सकती। संतोखी नूं बेआराम किया ही नहीं जा सकता, हर वक्त आराम दे च। एक गाथा याद आ गई है। एथेन दे यूनान दा दारुल खिलाफा राजधानी, उस जमाने च इस मुल्क का नाम यूनान से, अजकल तो ग्रीस कहते हैं, ग्रीस। एथेन दे बाजारां विच सिकंदर आजम, फाते आजम, महान सिकंदर की सवारी निकल रही सी। दीदार लई देखण लई सारा शहर उमड़िया। मैं कई दफा अर्ज किया, जिहदे पिछे मनुख दौड़दा है, जिन्हों देखण की लालसा रखता है, वैसा वो होना चाहता है, होना चाहता है।
किधरे एक राजनैतिक किसी जलसे च उन्हें बोलना है, सारा शहर इकट्ठा होंदा है, भावें उही बहुदा ते झूठियां गल्लां सारियां, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर भी दुनिया सुनन नूं इकट्ठी आउंदी है, परिक्रमा भी करती है। इस तो स्पष्ट है मनुख राजनीतिक ही होना चाहता है। फिर एक फिल्म स्टार आ जाता है, सारा शहर उहदे पिछे दौड़ पैंदा है। इस तो पता, हालांकि वो स्टेज के उत्ते नकल पेश करता है हासे की, रोने की, मरने की, जीवन की नकल पेश करता है। तो मनुखों का जीवन इतना नकली हो गया है कि नकल नूं पेश करने वाला पूज बन गया, महान बन गया। इस तरह पहले नहीं सी, या इंज कह लीए पहले इतनी जिंदगी विच नकल नहीं सी, असल सी। नाटक मंडलियां पहले भी होंदियां सन, रहस्यधारी पहले भी होंदे सन, लोकी सिरां ते चुक्की नहीं फिरदे होंदे सन। पर अज ते अभिनेता एक्टर मनुख दे सिर ते बैठा है। जन्म तो लैके मरण तक उन्हां दियां कहानियां गल्लां तरह तरह के फिल्मी मैगजीन दे छपदियां, और सारा देश की सारी दुनिया अपने अपने मुल्क के फिल्म स्टारां की जीवन कथा पढ़ती है। कौन अवतारां की कथा पढ़े, कौन संतां महात्मावां दीयां कथा पढ़े। मनुख जिन्हों पढ़ना चाहता है, सुनना चाहता है, वेखना चाहता है, जिदे पिछे दौड़ रहा है, भज रहा है, वैसे होना चाहता है। सिकंदर नूं देखण लई सारा शहर उमड़िया। सवारी इसकी निकली हाथी ते बैठा है, क्योंकि उच्चा जानवर है तो भीड़ दे उच्चा सिंघासन चाहिदा सी। हाथी ते बैठा है पालकी दे। सवारी निकल रही है, कोई फुल्लां दे बरखा करदा है, कोई उपमा दे गीत गांदा है, कोई अपनी भाषा दे तरह तरह के नारे लांदा है, सलामां करते हैं झुक झुक के। हाथी होले होले चल रहे। रस्ते दे चौक आउंदी है ते बिल्कुल सामने एक मस्त फकीर बैठा है, पर तन दे कपड़े पाटे हुए से, हालत मस्तानी सी। सवारी लंघी, जिहड़े बैठे सन सारे खड़े हो गए सलाम करने वास्ते। जिहड़े खड़े सन उन्होंने झुक के सलाम की। वो फकीर खड़ा नहीं होया ते सलाम भी नहीं की थी। सिकंदर ने हाथी रुकवाया, कोई बागी जापदा है, अज ये गुस्ताखी कर रहा है, कल कोई होर करेगा, परसों कोई होर करेगा।